کہاں سے لاؤ گے؟ تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، مگر بلال سا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، مگر بلال سا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور زبان سے کہہ تو سکتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، زبان سے کہہ تو سکتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، مگر آنسوؤں کا خزانہ کہاں سے لاؤ گے؟ مگر آنسوؤں کا خزانہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور ہے پورے ہند پر قبضہ ہمارے خواجہ کا، ہے پورے ہند پر قبضہ ہمارے خواجہ کا، ہمارے خواجہ سا راجہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہے پورے ہند پر قبضہ ہمارے خواجہ کا، ہمارے خواجہ سا راجہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور جہاں ہو مفتی اعظم اور ہو اختر بھی، جہاں ہو مفتی اعظم اور ہو اختر بھی، رضا کے جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے؟ رضا کے جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور ہو جس میں کروڑوں سوائے اختر کے، ہو جس میں کروڑوں سوائے اختر کے، بتاؤ ایسا جنازہ کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ ایسا جنازہ کہاں سے لاؤ گے؟ میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، اچھی رضا پیاری رضا ہم سب کے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ ایک اللہ والے کی محفل میں حاضر ہیں، ذکر غوث اعظم میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ نمازوں کی پابندی کرے تو سمجھو کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اگر بندہ روزے رکھے تو سمجھو کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اگر بندہ زکوٰۃ وقت پر ادا کرے تو سمجھو کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اگر حج کی استطاعت رکھتا ہو پھر حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے تو سمجھو کہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی یتیم پر اگر وہ ظلم نہ کرے بلکہ شفقت کرے تو سمجھو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ لوگوں، اللہ سے ڈرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے والا مسجد میں چلتا ہے، جب اذان ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے والا نماز کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جو اذان کے وقت میں خاموش نہ رہے، جو اذان سن کر کے مسجد کی طرف نہ دوڑے، کیا کہو گے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ جو شرابیں پیتا ہو کیا کہو گے اللہ سے ڈرتا ہے؟ جو جوا کھیلتا ہو کیا کہو گے اللہ سے ڈرتا ہے؟ جو زنا کرتا ہو کیا کہو گے اللہ سے ڈرتا ہے؟ جو یتیموں مظلوموں پر ظلم اٹھاتا ہو کیا کہو گے اللہ سے ڈرتا ہے؟ جو بھائی بھائی کا حق مارتا ہو کیا کہو گے وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ اللہ اکبر میرے پیارے،
اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں میں ملوث رہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب تو یہ ہے انسان برائیوں سے بچا رہے, اچھائیوں کی طرف قدم بڑھاتا رہے. اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے, اللہ سے کیسے ڈرا جا سکتا ہے؟ آئیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے اللہ کے قرآن سے پوچھا اے اللہ کی مقدس قرآن آخر بتا ہم سچا کسے جانے؟ آج دنیا کے اندر جتنے جھوٹے ہیں سب اپنے آپ کو سچا کہلاتے ہیں. آج دنیا کے اندر جتنے مکار ہیں سب اپنے آپ کو سچا کہلاتے ہیں. آج دنیا کے اندر جتنے دھوکے باز ہیں سب اپنے آپ کو سچا کہلاتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اللہ وہ لوگوں سنو, اگر میں کسی کو سچا کہوں اختلاف ہو سکتا ہے, قاری عرفان کسی کو سچا کہے اختلاف ہو سکتا ہے, علامہ مولانا قاری ضیاء الحق صاحب قبلہ کسی کو سچا کہے اختلاف ہو سکتا ہے, مولانا حبیب الرحمان نعیمی کہتے یہ سچا ہے, ایک مانے گا ایک نہ مانے گا. مشاہد میں کسی کو سچا کہے اسے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. آئیے آپ ہم سے مت پوچھو, آؤ دنیا کے کسی انسان سے مت پوچھو, دنیا کی کسی کتاب سے مت پوچھو, اللہ کے قرآن سے پوچھو. اے اللہ کی مقدس کتاب تو بتا تیرے ایک ایک زیر و زبر پر ہمارا ایمان ہے, تیرے ایک ایک لفظ پر ہمارا یقین ہے. اے قرآن تو بتا آخر سچا کون ہے؟ اللہ اکبر. تو میرے پیارے اللہ کا قرآن فرماتا ہے او اللہ کے بندو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر سچوں کو تلاش کرنا ہے, اگر سچوں کی نشاندہی کرنا ہے, اگر سچوں کی شناخت کرنا ہے, اگر سچوں کا ایڈریس معلوم کرنا ہے, اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ سچا ہے کون, تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کا قرآن فرماتا ہے نبیین سچے ہیں, اللہ کا قرآن فرماتا ہے نبیین سچے ہیں, نبیین سچے ہیں, شہداء اجمعین سچے ہیں, صالحین سچے ہیں. وہ لوگوں اللہ کے قرآن نے بتا دیا, وہ لوگوں اپنی زبان میں کہہ لو کہ مدینے کا تاجدار سچا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سچا ہے. مدینے کا تاجدار, زور سے بولو مدینے کا تاجدار سچا ہے. اللہ اللہ مدینے کا تاجدار سچا ہے. حضرت ابو بکر سچے ہیں, حضرت عثمان غنی سچے ہیں, حضرت عمر فاروق سچے ہیں, حضرت مولا علی سچے ہیں, حضرت امام حسن سچے ہیں, حضرت امام حسین سچے ہیں, حضرت زین العابدین سچے ہیں, حضرت امام حسن امام حسین, حضرت زین العابدین امام باقر سچے ہیں, امام جعفر سچے ہیں. اے لوگوں اپنے ذہن کو قریب لاؤ اور یہ سوچو جن کی تختی پر جملے نوٹ کر کے لے جاؤ کہ بغداد کا محی الدین سچا ہے, اجمیر کا معین الدین سچا ہے, کلیر کا علاؤالدین سچا ہے, دہلی کا نظام الدین سچا ہے, مراد آباد کا صدر اللہ فاضل نعیم الدین سچا ہے, امروہہ کے شاہ بلائے سچے ہیں, رامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ سچے ہیں, پیلی بھیت کے شاہی محمد شیر میاں سچے ہیں, کالپی کے میر عبد الواحد نگرامی سچے ہیں, کالپی کے تاجدار سچے ہیں, بلگرام کے تاجدار سچے ہیں, بحریرہ کے سید آل رسول اور تمام خاندان والے سچے ہیں. اے لوگوں اپنے ذہن کو قریب لاؤ. قطب آفتاب معظم شاہ رحمت اللہ علیہ سچے ہیں. بریلی کی دھرتی پر پہنچو, نبی علی خان سچے ہیں, نبی علی خان کا بیٹا امام احمد رضا سچا ہے, امام احمد رضا کا بیٹا حضور سرکار مفتی اعظم ہند سچے ہیں, سرکار مفتی اعظم ہند کے جانشین سرکار تاج الشریعہ سچے ہیں. اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کے کہتے ہیں اے دنیا کے اندر سچائیوں کی لسٹ دیکھنے والوں, ان سب میں جو سب سے بڑا سچا ہے اس کی پہچان بتائے دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کے کہتے ہیں سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے, سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے, ہے ان سچوں میں سچا ہمارا نبی, ہے ان سچوں میں سچا ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی. کچھ نہیں جس کے آگے سبھی مشعلے شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن حضرت علامہ قاری مولانا صاحب قبلہ
नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोलो यार, जोर से। नबी के नाम पर खामोश हो, अल्लाह की कसम, नबी का तो वो नाम है, अगर कब्रिस्तान के कोने पर ले दिया जाए तो मुर्दे भी बोलते हैं सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह की कसम, तारीख उठा करके देखो, दुनिया में तुमने बड़े लोग देखे होंगे, लेकिन जब सच्चाई का मसला आता है, वो जब तारीख उठा करके देखी जाती है, अल्लाह अल्लाह, तो सच्चों की फरिश्त में अल्लाह वालों का नाम आता है, सच्चों की फरिश्त में अल्लाह के मुकद्दस बंदों का नाम आता है। और लोगों, एक तारीख सुन लो और बात को खत्म कर लो। एक सच्चे की हकीकत तुम्हारे सामने रख देना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, एक धरती पर ऐसा सच्चा है जिसको पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया, जिसको अल्लाह की कसम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के नाम से ऐसा सच्चा, जोर से। आगे बढ़ के बैठो, दीवार का देख, नाज़िम भाई अलग हट जाओ। दीवार गिरेगी नहीं, मैं गारंटी ले जाऊँ। कभी तुम समझ रहे हो साहब हम रोके पड़े थे दीवार को, हमसे ये बहुत सीमेंटेड बनी हुई है, बड़ा अच्छा सीमेंट लगा है इसमें। दुआ करें इंशाअल्लाह गौसे आदम की महफिल के सदक़े में इस मकान में प्लास्टर बहुत जल्द हो जाए और इंशाअल्लाह फिर मिलाद हो जाए। है कुछ लोग तो क्या ही नरे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चांद की पहली तारीख से ये मिलाद रखा जा रहा है, चांद की पहली तारीख से। समझे? मुश्ताक भाई कह रहे जब तुम्हें टाइम होगा जब पढ़ेंगे, जिस दिन मुझे टाइम था तो इन्हें टाइम देंगे। पता चले एक दिन हम एक तारीख रख रहे हो, दोनों एक जलसे में मिल गए, इनकी साउंड लगू और मैं तकरीर करने गया, तो ये कह रहे तुम तो ये वाली तारीख हमें दे रहे, तुम्हें तुम भी तो इसी में करने कह रहे थे। पता चला दोनों ही गायब हैं गाँव से। मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह, और बोले सुभान अल्लाह। और लोगों सुनो, एक सच्चे की हकीकत तुम्हारी निगाहों के सामने रखूं, अल्लाह अकबर, मुख्तसर जुमलों में कह दूं, एक सच्चा है जिसको तारीख में हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, एक दिन ये सफर कर रहे थे, सफर करते करते मीलों दूर निकल गए, इन्हें भूख लग रही थी, तो साजो सामान सब खत्म हो चुका था, भूख नहीं इतना कर पाया। जब भूख लगी तो खाना खाने को दिल चाहा, लेकिन कोई चीज नजर नहीं आई। आंखें खोल करके देखा, सामने एक दरख्त था, दरख्त तो खजूर का था, उस पर फल लगे हुए थे। हाथ आगे बढ़ाया, दरख्त पर फल तोड़ करके ले आए, लेकिन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया अंदर से आवाज आई, ओ अबू मूसा, ओ अबू सालेह, ये फल तुम्हारे नहीं है, ये दरख्त तुम्हारा नहीं है, ये पेड़ तुम्हारा नहीं है, अगर तुम तोड़ करके खाओगे ये तुम्हारे लिए जायज नहीं होगा। खुदा ने हाथ को रोक दिया, हाथ को नीचे कर लिया, अब फल खाया नहीं, आगे सफर कर लिया। अल्लाह अल्लाह, मीलों सफर करने के बाद भूख फिर लग रही थी, और भूख का आलम तो मेरे प्यारे ये था, अल्लाह अकबर। अब इस भूख ने जब ज्यादा परेशान किया तो देखा जिस नहर के किनारे आप चल रहे थे उसी नहर में एक सेब लेकर आ रहा था। अल्लाह के वली ने उस सेब को उठा करके खा लिया, वो सेब उठा करके खा लिया। अब सेब तो उठा करके खा लिया, जैसे ही खाया तो पेट में तो सहारा हो गया, लेकिन लोगों अगला जुमला सुनो, पेट में सहारा तो हो गया लेकिन वक्त नमाज आ गया, नमाज का वक्त हो गया। और नमाज के लिए हजरत अबू सालेह खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐसा नमाजी था कि जब ये कयाम करता था, कयाम इसे सलाम करता था, जब ये रुकू करता था, रुकू इसे सलाम करता था, जब ये सजदा करता था, सजदा इसे सलाम करता था। आज हजरत अबू सालेह नमाज के लिए खड़े हो गए, जल्दी से कयाम कर लिया, कयाम में दिल नहीं लगा, जल्दी से रुकू कर लिया, रुकू में मजा नहीं आया, जल्दी से सजदा कर लिया, सजदे में भी दिल न लगा, सजदे में लज्जत महसूस नहीं हुई, रोने लगे नमाज से फारिग होकर। बोला मुझे हो क्या गया, जब रात को कयाम में खड़ा होता था दिल चाहता था रात लंबी हो जाए ताकि अबू सालेह का कयाम लंबा हो जाए, जब रुकू करता था दिल चाहता था रात लंबी हो जाए ताकि अबू सालेह का रुकू लंबा हो जाए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन बोला आज हो क्या गया, आज न कयाम में दिल लग रहा, न
रुकू में दिल लगा, न सजदे में दिल लगा। मौला वजह क्या है? अंदर से आवाज आई, ओ अबू स्वाले, ओ अबू स्वाले। वजह कोई और नहीं, वजह ये है कि तुमने जो सेब उठा करके खाया है, उस सेब का मामला ये हो गया। क्या तुम्हारा दिल नमाजों में नहीं लग रहा? वो सेब तुम्हारा नहीं था, वो तुम्हारी मिल्कियत नहीं था, वो तुमने किसी से मांग कर नहीं खाया था, किसी से इजाजत लेकर नहीं खाया था। वो सेब क्या खाया? तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। अल्लाह अल्लाह रोने लगे, ओ मौला मुझे माफ कर दे, तेरी खता को माफ कर दे। आवाज आती है, दिल ही दिल से आवाज आई, ओ अबू स्वाले, ये हुकूकुल्लाह नहीं है कि अल्लाह माफ करे, ये हुकूकुल इबाद है। अरे जाओ, जब तक सेब का मालिक माफ नहीं करेगा, उस वक्त तक तुम्हें परवरदिगार भी माफ नहीं करेगा। लोग कुछ हुकूकुल्लाह होते हैं, वो कुछ हुकूकुल इबाद होते हैं। नमाज हुकूकुल्लाह है, नहीं पढ़ेंगे तो उसे अल्लाह ही माफ कर सकता है मेरे प्यारे। लेकिन अगर किसी का हक मार लिया, अगर किसी के हिस्से का तुमने अपने 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 पास रख लिया, किसी की अमानत में खयानत कर दी, वो हुकूकुल इबाद होगा। जब तक वो माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें हरगिज़ माफ नहीं कर सकता है। वो लोगों अब अंदाजा लगाओ, अंदर से आवाज आई, ओ अबू स्वाले, हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह नहीं, हुकूकुल इबाद है। मालिक को तलाश करो, माफी मांगो। हजरत अबू स्वाले जिधर से वो सेब बह करके आ रहा था, उसी जानिब रोते हुए चल देते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। मौला मुझसे क्या खता हो गई, मैंने एक सेब उठा करके खा लिया। वो मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, वो वक्त का वली एक सेब उठा करके खा ले, नमाजों का मजा खत्म हो जाए, सजदों में दिल लगना बंद हो जाए। अरे तुम भी तो कितने ऐसे हो जो महीने में मस्जिद में जाने दिल नहीं करता, हफ्ते में मस्जिद में जाने दिल नहीं करता, नमाजों से दूर रहते हो, सजदों में दिल नहीं लगता। अगर नमाज में जाते भी हो तो जल्दी जल्दी पढ़कर वापस आ जाते हो। याद रखो, अगर नमाज में दिल नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं लूजिंग है, कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे शिकम को, कहीं ना कहीं हमारी जो ग़िज़ा हमारे अंदर जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी वाक़ई रह रही है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, अब रोते रोते दरिया के किनारे चल देते हैं। अल्लाह अल्लाह, मीलों सफर करने के बाद देखा कि एक बाग है, उस बाग में सेब के पेड़ है, और वो पेड़ों के जो तने थे वो पानी की सतह पर थे। अल्लाह अल्लाह, उन पर सेब लदे हुए थे। समझ गए कि जो सेब मैंने खाया है वो किसी और का नहीं, इसी बाग का सेब होगा। और लोगों ये आगे बढ़े, पहुंचे बाग के अंदर, देखा खादिम लगे हैं। खादिमों से पूछा, ओ खादिमों ये बताओ तुम्हारा मालिक कौन है? मालिक तो अभी सो रहे हैं। कब उठेंगे? जब नमाज का वक्त होगा। अल्लाह अल्लाह, ये नौजवान इंतजार करता रहा, नमाज का वक्त हुआ, बाग का मालिक बेदार हुआ। नौजवान आगे बढ़ा, जाकर के सलाम किया, मालिक ने सलाम का जवाब दे दिया। कहने लगे, ओ नौजवान तेरे आने का मतलब क्या है? तो नौजवान कहने लगा, हुजूर मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया जो पानी में बह करके दूर चला गया था, मुझे भूख लगी थी, मैंने उसको खा लिया, इसलिए आया हूँ कि खुदा के वास्ते मेरी खता को माफ फरमा दो। जोर से बोलो यार, जोर से। इसलिए आया हूँ कि माफ फरमा दे। सेब उठा लिया, खा लिया, पानी में बहकर आया, किसी के पास से तोड़ा नहीं था, किसी के घर से उठाकर लाए नहीं थे, किसी के हाथ में से छीना नहीं था, पानी में बहकर जा रहा था, उठा करके खा लिया। माफी मांगने के लिए मीलों सफर करके पहुंचे हैं। जब माफी का नंबर आया तो वो भी अल्लाह वाले थे, अल्लाह की कसम उनकी निगाह उठी और निगाहें विलायत डाली तो समझ गए कि जो एक सेब की माफी के लिए मीलों चल करके आया हो वो कोई मामूली नहीं होगा, अल्लाह का नेक और खास बंदा ही होगा। अरे कोई नेक ही तो होगा, वरना हमारा आपका हाल क्या है? चले जाते। अगर किसी का बाग में से आम तोड़ लिया और मालिक ने कहा क्यों तोड़ा है, तो 70 रोड हो जाएंगे, उसको कर ले, क्या कर ले, क्या कर लेगा हमारा? अल्लाह अकबर। लेकिन उन्हें देखो लोगों, माफी मांगने के लिए पहुंचे। माफी चाहते हो कि हाँ तुम्हें सजा मिलेगी? हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सजा क्या है? आपने फरमाया सजा ये है कि 12 साल हमारे बाग में नौकरी करना पड़ेगी। कितने दिनों, कितने? 12 साल नौकरी करना होगी हमारे बाग में। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुजूर नौकरी कर लूंगा 12 साल, लेकिन सरकार माफ तो कर देगी।
माफ कर देंगे। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, अंदाजा लगाओ, हम तुम होते पहली बार तो जाते ही ना, और अगर चले भी जाते भूल चूक में, और कोई कहता बोले 12 साल नौकरी करनी होगी, तो कहते भाई 2 जोड़ी कपड़े लिया मैं, है यही तो समझा के आते, बोले 2 जोड़ी कपड़े लिया, बोले हाँ लिया, फिर उन बट्टियों को ना भटकता कर। हाँ गलत नहीं कह रहा हूँ, औलाद की औलाद से क्या क्या मर जाता, उधर को मैं चला दिए, एक सेब खा लिया मैंने, 12 साल नौकरी करवा लिया। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, एक सेब उठा करके खा लिया। आज हमारा हाल क्या, रोड से ट्राली गुजर जाए ना, हमारी खून करो जवान आगे बढ़ करके गन्ने खींच खींच के लाता है कि नहीं लाता, वो जैसे घर में लाता है एक गन्ना तो माँ टेढ़ी आंखें करती है, अच्छा एक ही लाया है, तो फिर दौड़ा दौड़ा जाता, एक और लाता, तो बहन अकड़ के दिखा रही है, हमें बहन समझ ही कब रहे आना, तो 3 न लाता, फिर गया एक और लिया। अब इनसे पूछो जो गन्ने जो ग़िज़ा माँ खा रही है, बहन खा रही है, बच्चे खा रहे हैं, ये जायज है कि नाजायज है? अरे ये नदी मिल क्या थी, किसी से पूछ के लाया था, ट्रैक्टर वाले का मुंह आगे को देखा, पीछे से खींच के ले आया। और लोगों अंदाजा लगाओ, जब हमारे बच्चे हराम की ग़िज़ाएं खाएंगे तो अल्लाह की कसम वो गलत नतीजे दिखाएंगे, वो गलत रास्तों पर चलेंगे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद नेक रहे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियां तुम्हारे घरों की जीनत और इज्जत बनी रहे, तो कभी हराम का माल मत खिलाना, हमेशा जायज खिलाना। अल्लाह की कसम, अगर तुम जायज खिलाओगे तुम्हारी औलाद हर लम्हा तुम्हारी इज्जत और कदर करती हुई नजर आएगी। जानते हो गलत हम खिलाते हैं, नतीजा औलाद दिखाती है। हम गलत खिलाएं, नतीजा औलाद दिखाए। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, सुनो, कहने लगे हुजूर माफ तो कर देंगे, 12 साल नौकरी कर लूंगा। कहा करो नौकरी करना शुरू कर दी, करते रहे 12 साल होने के करीब आए। एक दिन मेहमान आए उनके यहाँ पर, कहा भाई मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे सेब लाओ जो मीठे हो, आप तोड़ करके ला करके दस्तरखान पर रखे। मेहमानों ने जैसे ही मुबारक खट्टे थे, कहने लगे अजीब नौकर है तुम्हारा, इसे तो ये भी पता नहीं कि खट्टे ला करके रख दिए। आए बुलाया वो जवान, तुम्हें ये तमीज रही है, तुम्हें ये पता नहीं कि तुमने खट्टे ला करके रख दिए। मेहमानों ने कहा अजीब नौकर हो, बाग में रहते हो, सेबों का पता नहीं खट्टे हैं कि मीठे हैं। अल्लाह, तो कहने लगे मुझे पता नहीं, मैं कभी खाकर नहीं देखा। तो जवान ने कहा खाने की बात करते हो, 12 साल होने को आए, कभी चक्कर भी नहीं देखा। बोलो यार बोलो, आज तो किसी को बाग रखाने पर तो पेट में की पेट में गायब है, समझे सब रिश्तेदारियों का अपने माल है, बोले खाओ बड़ा माल है। सुनो मेरे प्यारे, उठाया, अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, सेब उठाकर नौकर ने का खाया नहीं, इतने दिन हो गए कि 12 साल आज तक खाया ही नहीं। कहने लगे 12 साल पहले एक खा लिया था, अभी वही मुकदमा नहीं निपटा था, और खा लेते तो क्या होता। 12 साल पहले जो खाया था अभी तो उसी की सजा में चल रहे हैं, अगर और खा लेते तो क्या नतीजा निकलता। अल्लाह अल्लाह, मेहमान कहने लगे गुलाम तो बहुत देखे, खादिम तो बहुत देखे, नौकर तो बहुत देखे, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसा नौकर हमने यहाँ देखा, पूरी कायनात में आज तक हमने ऐसा सच्चा नौकर ही नहीं देखा। ये हकीकत है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, अब इन्होंने नौकरी करना शुरू कर दी, 12 साल होने के करीब आए, खड़े होकर के कहने लगे हुजूर 12 साल हो गए, अब तो माफ कर दो। तो उन्होंने कहा हाँ माफ कर देंगे, लेकिन अगली शर्त तो सुन लो। क्या है? अगली शर्त ये है हमारी बेटी से निकाह करना भी होगा, निकाह करना होगा। तो आपने कहा हुजूर मुझे मंजूर है, निकाह पढ़ा दीजिए लेकिन माफ कर दीजिए। निकाह भी मंजूर है, माफ कर दो। अब कमाल ये नहीं है कि निकाह के लिए तैयार हो गए, कमाल ये है कि ये भी ना पूछा कि रंग कैसा है, ये भी ना पूछा रंग कैसा है, ये भी ना पूछा गोरी है कि काली है, ये भी ना पूछा कि मोटी है कि पतली है, ये भी ना पूछा कि उसका कद कैसा है, ये भी नहीं पूछा कि लंबी है कि लट्टी है, ये भी ना पूछा आंख कैसी है नाक कैसी है, ये भी ना पूछा बाल कैसे है पेशानी कैसी है, कुछ ना पूछा। मंजूर है हुजूर, मंजूर है, निकाह कर लूंगा लेकिन माफ तो कर देंगे। और आज हाल क्या, इंची टेप लेके आ जा, हाँ इंची टेप नाप के देख जा, बोले 2 इंच छोटी रह गई भाई। हाँ अरे यार देखो कितनों की बेटियां इसीलिए लोगों ने फेल कर दी। बोले रिश्ता देखने गए, क्या हुआ? बोले वो 2-4 इंच थोड़ी छोटी थी। तुम्हें कैसा पता चल गया? बोले हमने नाप के देख लिया। और एक जगह तो ऐसी नपाई हुई, मैं नाम तो बताऊंगा नहीं उस जगह का, इलाके में ये गाँव है,
वो गए रिश्ता देखने, लड़की को जाके जानापा बिलांदो से लड़के की माँ ने, समझे, लड़के की माँ जब रिश्ता देखने जाती है तो अपने आप को ये समझा मुख्यमंत्री हूँ मैं। हाँ गलत नहीं कह रहा हूँ, इतनी फॉर्म में आ गया वो, जैसे आज ही पार्लियामेंट से आ रही उठ के, समझे। जाकर के उसने नाप लिया उसे साहब बिलांदो से और बोली साहब हमारे लोंडे से आधा बिलांद लोंडिया ऊंची है, हम ना करेंगे। अल्लाह अकबर। अब आगे ऐसी नपाई हुई, ऐसी नपाई, उन्होंने कहा तो कुछ ना खूब खिलाया, समझे। और उसके बाद में विदा कर दिया, फिर फौरन थाने पहुंचा, रिपोर्ट कर दी। जब रिपोर्ट कर दी पुलिस वाले जब पहुंचे ना पटा लेके, बोले पहले उन्हें लाओ मुख्यमंत्री को, वो जो गई थी ना पैमाइश कर रहे हैं, समझे। तो पुलिस वाले ने देख करके कहा अरे वो उससे कहा, बोले तेरी बहू है पटवारी, तो के नाम पे फिर रही है दूसरे की। यार कमाल इस बात का है। लेकिन हजरत अबू साले को देखो, ये भी न पूछा रंग कैसा है, ये भी न पूछा कद कैसा है, ये भी न पूछा कैसी है, बस निकाह के लिए मंजूर हो तैयार है। तो मुझे मैं तैयार हूँ, लेकिन माफ तो कर देंगे, कहा माफ कर देंगे, लेकिन सुन आंखों से अंधी भी है। अरे मियाँ आज तो भाग गया था, बोले अब्बा से पूछता हूँ पहले, कौन अबू साले? सुभान बोले आंखों से अंधी भी है। आपने फरमाया मुझे मंजूर है, जोर से का वो मुंह से गूंगी भी है, का मुझे मंजूर है, कानों से बहरी भी है, का मुझे मंजूर है, पैरों से लंगड़ी भी है, का मुझे मंजूर है, हाथों से लंची भी है, का मुझे मंजूर है। अल्लाह अल्लाह। वो लोगों निकाह पढ़ा दिया गया, जब बीवी के कमरे में पहुंचे, जंजीर खटखटाई, अंदर से एक हसीनो जमील एक लड़की निकल करके आई, उसने दरवाजे की कुंडी को खोला, सलाम किया, सलाम का जवाब दे दिया, फौरन वापस पीछे को आ गए, आकर के कहने लगे ओ हुजूर मामला बड़ा खराब होने फिर रहा है। क्या मामला है? जिसके साथ निकाह हुआ था वो लड़की कमरे में नहीं है, कमरे में वो नहीं है, कमरे में तो कोई और है। क्यों, तुम्हें कैसे पता चला? कि आपने कहा था आंखों से अंधी है, वो तो देख रही है, आपने कहा हाथों से लंजी है, वो तो कुंडी खुल रही है, आपने कहा कानों से बहरी है, वो तो सलाम का जवाब सलाम सुन रही है, आपने कहा मुंह से गूंगी है, वो तो सलाम का जवाब दे रही है, पैरों पर खड़ी है, आपने कहा था कि वो इसके अंदर ये कमियां है, लेकिन आज वो बिल्कुल बदली हुई है, उसको आंखों में रोशनी भी है, उसके हाथ पैर भी सलामत है। अल्लाह हजरत अब्दुल्लाह सुमई फरमाते हैं और नौजवान वही तो तेरी बीवी है, वही तो मेरी बीवी है। तो हुजूर आपने तो कहा था आंखों से अंधी है, कहा हाँ वो आंखों से अंधी जरूर है, लेकिन वजह ये है इसलिए आंखों से अंधी है कि आज तक इन आंखों से गैर महरम का चेहरा न देखा, इसलिए पैरों से लग रही है, आज तक गलत जगह पर पैरों से चढ़कर न गई, इसलिए कानों से पकड़ी है, इन कानों से इसलिए जबान से गूंगी है, इस जबान से कभी गलत ना बोली। वो लोगों आपने कहा सुन मेरे बेटे सुने, मेरी वो बेटी है जिसकी नमाज पंच का न तो बड़ी बात, उसकी तो तहज्जुद की नमाज भी कदा ना होती, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बेटी वो है जो 24 घंटे बावजूद रहती है, रात को नफिल नमाज़ें पढ़ के सोती है। अल्लाह अल्लाह। वो लोगों अंदाजा लगाओ जब इतनी पारसा बीबी थी और इतना बड़ा पारसा बाप शोहर था, जब बीबी देख शोहर देख, बीबी मुत्तकी शोहर मुत्तकी, बीबी परहेजगार शोहर परहेजगार, जब दोनों का मिलन हुआ अल्लाह ने बीवी के शिकम से एक ऐसी शख्सियत को पैदा फरमाया जिसको सारी दुनिया पीरे पीरा कहती है, पीरे पीरा कहती है, साहे चीला कहती है। अल्लाह की कसम इन्हीं की कोख से पैदा होने वाले बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रखा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। रमजान का महीना था, दूध नहीं पिया। जब दूध नहीं पिया आपने, अल्लाह अल्लाह, शाम होने को है, दूध नहीं पिया, माँ मुंह से दूध लगाती है लेकिन बच्चा मुंह हटा लेता है। जैसी वक्त मगरिब हुआ मुंह खोल दिया, जबान को निकाल लिया, माँ ने छाती को आगे बढ़ाया, बेटे ने अपने लबों से चूस लिया, दूध पीना शुरू कर दिया। वो लोगों माँ खुशी की उससे उछलने लगी। माँ ने कहा वो लोगों देखो ये मेरा वो बेटा है जो पैदा ही रोजेदार। आज तो अट्टा कट्टा जमान रोटी रख 3 टाइम खा के अगर मुंह पर रगड़ मारेगा, ऑटो पर पपड़ी जमा दे और बाहर निकल कर और गर्मी है भाई, हाँ, ताकि कोई ये ना समझे इसका रोजा नहीं है। अरे दुनिया वालों को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है बंदो, समझे। अल्लाह अकबर। ये वो है
सुनो मेरे प्यारे, अभी थोड़ी सी उम्र है, बात तो हालांकि टाइम बहुत हो गया और हजरत आए हुए हैं, उनका खिताब सुनना है। हमें तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, हर जुमे को सुनने हैं कि नहीं? इन्हें काफी दिन हो गए इन्हें सुने हुए, ये कभी कभी आते हैं, अब इन्हें सुनना है। आखिरी बात कहकर के बात को खत्म कर दूं। 4 साल की उम्र है सरकार गौसे पाक की, जोर से बोले सुभान अल्लाह। 4 साल की उम्र, बच्चों में खेल रहे सरकार गौसे पाक, बच्चे खेल रहे थे, वहां से एक डोली गुजरी जिसमें दुल्हन बैठी हुई थी। दुल्हन बैठी हुई थी, बच्चों की आदत होती है, जब उन्होंने डोली को रखा, आराम करने लगे, बच्चे दौड़कर डोली के करीब पहुंचे तो उस कहारों ने कहा, ओ बच्चों क्या कर रहे हो? बच्चों ने कहा इसमें क्या है? कहने लगे चलो हटो, इसमें कुछ नहीं है। तो मेरे सरकार गौसे आजम 4 साल के थे, कहने लगे बच्चों चलो इसमें कुछ नहीं है, बच्चों इसमें कुछ नहीं है। ऐसा कहा चल दिए, डोली उठाई, कुछ देर के बाद वो चले, जब अपने मकाम पर जाकर के डोली को रख दिया, डोली का पर्दा हटा करके देखा तो डोली के अंदर से दुल्हन गायब हो चुकी थी। दुल्हन डोली के अंदर नहीं थी। पहाड़ों को अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया, इन्हें सजा सुनाने ही वाले थे। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने कहा कि तुम्हारी साजिश है, कहीं ना कहीं दुल्हन को बेच करके आए हो, कहीं ना कहीं दुल्हन तुमने बेची है, उसके जेवरात का सौदा करके आए हो। अल्लाह अल्लाह, कहने लगे हम तो कहीं ठहरे भी नहीं। तब एक पहाड़ ने कहा एक जगह हम आराम करने के लिए रुके थे, कुछ बच्चे डोली के करीब आए थे, लेकिन हमने तो पर्दा तक हटाने नहीं दिया, फिर बच्चे दुल्हन गायब कैसे हो गई? तो किसी ने कहा चलो चलते हैं वापस बच्चों से पता करते हैं, थोड़ी सी मोहलत दे दो। वो लोग थोड़ी सी मोहलत मांगी, वहीं पहुंचे, जाकर के देखा बच्चे खेल रहे हैं, आवाज दी वो बच्चों इधर आओ। अब बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं है, आवाज दी इधर आओ। बच्चों के करीब पहुंचे, जाकर के बच्चों से कहने लगे वो बच्चों क्या तुमने दुल्हन को देखा है? बच्चों ने कहा हमने तो नहीं देखा, क्या मामला है? कल दुल्हन गायब हो चुकी है, जब से यहाँ पर पालकी रखी थी उस वक्त दुल्हन इसके अंदर मौजूद थी, लेकिन जब हम पालकी को उठा करके ले गए और उनके घर पर जाकर के उतारा तो दुल्हन इस पालकी के अंदर नहीं थी। वो बच्चों देखा हो तो बताओ, वो बच्चों हम बड़ी मुसीबत में है, हम बड़ी परेशानी में है, अगर दुल्हन न मिली तो हमें सजा सुनाई जाएगी, हम कत्ल कर दिए जाएंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 4 साल की उम्र है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आगे बढ़ करके कहने लगे ओ कहारो ये बताओ जब तुमने यहाँ डोली रखी थी तो उसमें दुल्हन थी? कहा हाँ दुल्हन तो थी। कहाँ है डोली? डोली हम वापस ले आए हैं, खाली ये रखी है। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल कादिर फरमाते हैं क्या इसमें दुल्हन थी? कहाँ थी? तो शेख अब्दुल कादिर ने कहा इसमें थी तो इसी में ही होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या इसी में थी? कहा तो फिर इसी में होगी। वो लोगों जब पर्दा हटाया तो दुल्हन उसके अंदर बैठी मुस्कुरा रही थी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बेशक बेशक, वाह 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 वाह। तो मेरे गौसे पाक के 55 का हाल क्या होगा? बेशुमार करामतें सरकार गौसे पाक की, बेशुमार करामतें सरकार गौसे पाक की। आखिरी करामत सुना के मेरी तकरीर खत्म हो रही है। मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, अये है तड़प कर कह दें या रसूल अल्लाह। लोगों कैसा मजमा होगा जिसमें सुनाने वाला अब्दुल कादिर हो और सुनने वाले सरकार गौसे आजम के गुलाम सामने बैठे हों, जिनकी निगाहों के सामने सरकार गौसे आजम का चेहरा हो। दूर तकरीर कर रहे थे गौसे आजम, और लोगों से बता रहे थे लोगों अल्लाह ने मेरे आका को बड़ी सिफत अता फरमाई, इनकी ताकत और रिफत अता फरमाई कि अल्लाह ने मुस्तफा को मेराज अता फरमाई। 7 आसमानों के पार मेराज के लिए मुस्तफा के रब से हम कलाम हुए, बातचीत करी और वापस आए। इतनी देर में आ गई कि बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही, पानी बहता रहा। इतनी देर में वापस आ गए, इतने गुलाम से झूम कर कह रहे थे सुभान अल्लाह। लेकिन एक मुनाफिक तो यहूदी था, कहने लगा नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इतना लंबा सफर इतने चंद घंटों में, इतनी सी देर में कैसे पूरा हो सकता है? कि इतने लंबे सफर से वापस आ गए, जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है। मैं नहीं मानता 7 आसमानों के पार जाने वाला आदमी इतनी जल्दी वापस आया है, ये मैं नहीं मानता। ऐसा कहता हुआ घर चला गया। सरकारें गौसे आजम तकरीर करते रहे, घर गया, भूख लगी थी, बाजार से मछली ली, बीबी को जाकर के दी। कहने लगा वो बीबी जल्दी से मछली बनाओ, मैं नहा करके अभी आता हूँ। नहाने के लिए तालाब पर गया, बीबी को मछली दे गया, तालाब पर जाकर के कपड़े उतारे, गोता लगाया। अब जैसे दरिया में गोता लगाया तो था, लेकिन दरिया से सर उठाया तो थी
मतलब क्या, जब नहाने के लिए बोतल लगाया था तो मर्द था, जब सर ऊपर उठाया तो औरत बन गया, औरत बन गया। अब ये औरत बन गया तो इसने देखा, बड़ी हैरत हुई, यार मर्द औरत बन जाए तो हैरत तो होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, मर्द औरत बन जाए तो हैरत होगी, बड़ी हैरत है, बड़ा परेशान है, अब होगा क्या, मैं तो अच्छा खासा मर्द था, औरत कैसे बन गया। अब बड़ी कमाल की बात है, अब न कपड़े नजर आते हैं, न वो शहर, न वो बस्ती नजर आती है। उस रास्ते से एक शहजादे का गुजर हुआ, उसने देखा बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की खड़ी है, अल्लाह अल्लाह, उसने उसको अपनी नजर का शिकार कर लिया, एक चादर उस लड़की को दी, अपनी सवारी पर बिठाया, अपने घर लेकर के आया। वो लोगों चंद दिन रही, उसके बाद में उसने उसके साथ में निकाह कर लिया, अब निकाह हो गया, अब ये बीवी बनकर जिंदगी गुजारने वाला, अल्लाह अल्लाह, ये यूं कहिए गुजारने वाली, अब ये बाला नहीं बल्कि बाली बन चुकी है, गुजार रही थी। तारीख बताती है कई बच्चे भी पैदा हो गए, कई बच्चे पैदा हो गए, अब ये रानी रानी बनकर के रहने लगी, इसकी खिदमत में गुलाम रहे, इसकी खिदमत में बांदिया रहने लगी। एक दिन शहजादे से कहने लगी, दिल चाहता है बाहर की आबो हवा देखे, दिल चाहता है बाहर का मौसम देखे, दिल चाहता है कि बाहर की हवा देखे। कई इजाजत मिल गई, बाहर पहुंची पांचियों के साथ, देखा एक तालाब नजर आया, दिल चाहा कि इसमें और नहा करके देख लूं। वो लोगों तारीख बताती है, जब ये तालाब में नहाने के लिए आगे बढ़ी, और जब इसने डुबकी लगाई, तो जब डुबकी लगाई तो थी, लेकिन जब सर उठाया तो था। जोर से बोलो, जब डुबकी लगाई तो औरत थी, सर उठाया तो मर्द बन गया, सुभान अल्लाह। आप जब देखा तो तालाब पर वही कपड़े रखे हैं जो कभी पहले रखे थे, अल्लाह अल्लाह, कपड़े पहले जल्दी से घर की तरफ चला, दिल में सोच रहा था इतना वक्त हो गया यार, मेरे साथ क्या क्या हो गया, बच्चे हो गए, मैं कहाँ गया था, कहाँ रहा था, अब बीवी पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। जैसे घर में दाखिल हुआ, बीवी ने देख करके कहा, इतनी जल्दी आ गई, अभी तो मछली बनी भी नहीं है, इतनी जल्दी आ गए, अभी तो मछली बनी भी नहीं है। अब इसने कहा, यार बड़े कमाल की बात है, मैं इतना लंबा सफर तय करके आ रहा हूँ, मेरे साथ क्या से क्या हो गया, मर्द था औरत बना, शहजादा उठा करके ले गया, उसके साथ निकाह हो गया, 3-4 बच्चे भी पैदा करके आ गए। कह रही है इतनी जल्दी आ गए, बीवी कह रही अभी मछली बनी भी नहीं, इतनी जल्दी आ गए। बड़ी हैरत में है, बड़ा परेशान है, सोचने लगा जब यहाँ मछली नहीं बनी है और वहाँ तालाब पर कपड़े भी रखे थे, तो जरूर गुस्से आदम की महफिल भी हो रही होगी, वही जाकर के देखूं। जब ये पहुंचा देखा तो गुस्से आदम तकरीर कर रहे हैं, और वही बात यह चल रहा था मेराज का, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। बाकी अभी वही पहुंचे, करीब जाकर के ये नौजवान जाकर के ये इनकार करने वाला गुस्से आदम के स्टेज के करीब जाकर के मिंबर के पास जाकर के खड़ा हो गया, साइड में जाकर के खड़ा हो गया। सरकार गुस्से आदम तकरीर कर रहे थे, इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों, मेरे आका को आज भी सातों आसमानों के पार मुस्तफा गई, इतनी जल्दी आ गई कि जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी वुजू का बह रहा था, अल्लाह अल्लाह। सरकार गुस्से आदम फरमाते हैं, ओ लोगों, अगर अभी भी किसी को इस बात पर यकीन ना होता हो तो इससे पूछ लो। सरकार गुस्से आदम फरमाते, अभी भी अगर किसी को यकीन ना हो तो इससे पूछ लो। अब वो आगे बड़ा कदमों में गिर गया, कहने लगा मुझसे पाक कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए, मुसलमान बनाइए। बोला है मैं समझ गया, जब बगदाद के गौसे आदम के इल्म का ये हाल है तो मदीने के आमना के लाल के इल्म का हाल क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं सारे जमाना की झोली।